الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جو لوگ ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد اس کے پختہ ہو جانے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں اللہ اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا یہ لایا جائے یہ اس کو ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں ذَلِكَ بے شک الْقَاسِرُونَ عثمان رکھنے والے ہیں کیسے تَكْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا مردے فَأَحْيَاكُمْ بس تم کو زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ رکھے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے اب اجتماعی شماری نقل ایک بچا اس میں پڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جو لوگ ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ان یوصل یہ کہ ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اس کو اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں هم الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں بس کر لیا شاباش بول بولے شاباش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تھے تم امواتا مردے فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تم مرو گے یہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جی آگے چلیں گے کل لگیں گے پڑھ لو سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جو لوگ ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو آواز اونچی من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد وَيَنقضون نہیں جی وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل مامر اللہ بھی بس ما امر اللہ به اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ان یوصل یہ کہ ملایا جائے اس کو وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک پس وہ لوگ بس نہیں بیٹا یہی تو یہی لوگ هم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں جی بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تھے تم امواتا مردے فاحیاکم بس تم کو زندہ کیا جائے گا ثم یمیتکم پھر موت دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا ثم الیہ ترجعون
پھر اس کی طرف لٹائے جاؤ. آواز اونچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو عہد اللہ کا معنی بہت عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے میثاقہ نہیں بیٹا میثاقہ ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ اس کے حکم اس چیز کو حکم دیا اللہ نے بھی جس کے ساتھ اس کو حکم نہیں دیا, اس کو حکم دے دیا. ما امر اللہ بھی اللہ نے جس کا حکم دیا کہ اس کو یوصلا اسے ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ نقصان کھانے والے ہیں. جی آگے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم ہوتے اموالا مردے فاحیاکم بس تمہیں زندہ کیا گیا ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دی جائے گی ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا ثم الیہ ترجعون اور تم کی طرف لوٹے جاؤ. من بعد ہی نہیں بیٹا, من بعد ہی. وَيَقْطَعُونَ اور کیا کرتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ بولا بتاؤ اس کو. یوصلا نہیں بیٹا, یوصلا 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 کے لوگ نہ لو یوصلا. ہاں جی. اس کو اب جس طرح آپ ترجمہ کرتے ہیں آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئے گی کہ زمانہ کیا بات ہے. اللہ نے جس کا حکم دیا, کیا حکم دیا کہ اس چیز کو ملایا جائے, تب معنی سمجھ آئے گا. ہاں جی. وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک اور یہی لوگ هم الخاسرون نقصان کھانے والے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم کرتے امواتن مردہ فاحیاکم بس تم کو زندہ کیا جائے گا. زندہ کیا جائے گا نہیں, وہ زندہ ہو چکے, ان کو زندہ کیا. ہاں جی. ثم یحییکم پھر تم پر موت آئے گی. ثم یحییکم اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. الیہ ترجعون پھر تم دوبارہ کیا لوٹو. کر رہے ہو, سن میں یہی بول جاؤ. دیکھیں کہ کوشش کریں کہ تلفظ قرآن ماشاءاللہ آپ اکثر ناظران کو عمل کر چکے ہیں, پہلا پارہ ہے, اس میں غلطی نہیں آنی چاہیے. لفظ بالکل کلیئر اور صاف ہونا چاہیے. قرآن تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے, ایک اس کی پہلا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کے معنی اور مطالعے کو بھی خیال رکھیں. چلے لکھو آگے جی. هو الذی, بولو هو الذی, وہی ہے وہی ذات ہے,
वल्लदी वही ज़ात है, वल्लदी वही ज़ात है, खलका जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया। आप समझो ना बेटा, तो लफ्ज़ अपने पास से भी समझो। वल्लदी हुआ वही, अल्लज़ी ज़ात है, खलका लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो कुछ फिल अर्ज़ ज़मीन में है, जमीअन सारे का सारा, यदक हुआ वही, अल्लज़ी ज़ात है, खलका जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो कुछ फिल अर्ज़ ज़मीन में है, जमीअन सारे का सारा, वल्लज़ी वही ज़ात है, खलका लकुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन जी। आप समझ आ गई? कल तो आपने लिखा नहीं है, इसको दिमाग में लिखो, आसान है। वो अल्लज़ी बोलो, खलका लकुम मा फिल अर्ज़ जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन सब वो अल्लज़ी खलका लकुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मा फिल अर्ज़ जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन सारे का सारा। सुम्मा फिर इस्तवा बराबर हुआ। वैसे इसका माना ये करते हैं बराबर हुआ या मुस्तवी हुआ, इला समा आसमान की तरफ। बास कहते हैं फिर मुतवज्जे हुए अल्लाह आसमान की तरफ, जो भी माना लिखते हैं। फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिए, फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिए, सबआ सात समावात आसमान, सुम्मस्तवा फिर मुस्तवी हुआ, इला समा आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिया उनको, सबआ समावात सात आसमान, सुम्मस्तवा फिर मुस्तवी हुआ, इला समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिया उनको, सबआ समावात सात आसमान, वहुआ और वो अल्लाह, और वो बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीम जानने वाला है, वहुआ और वो बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीम जानने वाला है। मेरे साथ पढ़ेंगे जी। हुवल्लज़ी वही ज़ात है, हुवल्लज़ी वही ज़ात है, साथ भी बोलेंगे, हुवल्लज़ी वही वही ज़ात है, वही ज़ात है, खलक़ लकुम खलक़ लकुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ मा फिल अर्ज़ कुछ ज़मीन में है, जो कुछ ज़मीन में है, जमीआ जमीआ सारे का सारा। सारे का सारा। अब ज़मीन में जो कुछ भी है, फल है, सब्जी है, सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, और हर चीज़ हमारे लिए अल्लाह ने पैदा की है। आप कहोगे ज़मीन में सांप भी है, बिच्छू भी है, तो ये भी हमारे फायदे के लिए। एक इस एतबार से कि ज़मीन ऐसे जहरीली गैस छोड़ती है जो सांप अंदर खींचता है, और दूसरा बहुत सारी दवाइयों में सांप का जहर इस्तेमाल होता है, और वो हमारा इलाज के लिए बनते हैं। तो हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है, जो कुछ भी ज़मीन में है। अब उसकी अपनी हिम्मत है कहाँ तक उसकी अप्रोच होती है। सुम्मस्तवा फिर मुस्तवी हुआ, इला समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिया उनको, सबअ समावात सात आसमान, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम और वो हर चीज़ को जानने वाला है। जी आप सारे अपने अरबी के साथ
बना दी बेटा समाज के तरफ पहुंचे हुए बाद का मुस्तवी हुए जो भी माना करते हैं तो फिर बोले हुवल्लज़ी वल्लज़ी वही ज़ात है खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए मा फिल अर्ज़ी जो कुछ ज़मीन में है जमीअन सारा का सारा सुम्मा इस्तवा फिर बराबर हुआ इलस्समाई आसमान की तरफ ज़रा मुनासिब ये कि माना करें फिर मुतवज्जे हुआ ये ठीक है लफ्ज़ी माना तो बनता है अल्लाह मुतवज्जे हुए आसमान की तरफ फिर आसमान बना दिए साथ और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाले देखो कुरान करीम में कई जगह आप पढ़ेंगे एक आएगा कि अल्लाह ने पहले 7 ज़मीनें बनाई और फिर 7 आसमान बनाए इसी में ये आता है कि अल्लाह ने 7 आसमान पहले बनाए और ज़मीन बाद में बनाई कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में बात आती है समझो इस बात को समझ लो अभी ताकि आपको बात समझ आए इसमें तो ये आता है कि पहले अल्लाह ने ज़मीन बनाई समझ आई जो कुछ फिर अल्लाह ने आसमान और मुतवज्जे हुए आसमान बनाए आगे चल के आएगा वही ज़ात है जिसने आसमान बनाया फिर ज़मीन बनाई इनमें कौन सी बात सच्ची है वो कौन सी बात सच्ची है कि आसमान पहले बना है या ज़मीन पहले बनी है या ज़मीन पहले बनी है आसमान बाद में बने बात ये है कि अल्लाह की दोनों बातें सच्ची है कुरान में जो कहा सच्ची बात जो कहा अल्लाह ने सच कहा है तदबीक इसके अंदर ये है कि सबसे पहले ज़मीन जो है इससे नीचे पानी पानी था सारी कायनात पानी पानी थी अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस पानी पे अपना जलाल डाला गुस्सा जलाल उस अल्लाह के गुस्से और जलाल से ज़मीन में उस पानी में हरारत पैदा हुई जब पानी गर्म होता है तो उसमें क्या चढ़ता है झाग वो पूरी कायनात के अंदर झाग झाग बन गई पानी उबलने के साथ होता है फिर अल्लाह ताला ने उस झाग को कायनात में सबसे सेंटर में जमा किया जितनी पूरी कायनात में वो झाग थी ना जब पानी पे झाग होती है वो झाग जमा हुई ये कायनात का ज़मीन का सेंटर है समझ आई ये वो जगह बन गई जिसे आज हम हरम काबा कहते हैं ये जो हरम काबा की जगह है ये सबसे पहले अल्लाह ने इसको वजूद बख्शा फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए अल्लाह ने एक आसमान बनाया दूसरा बनाया तीसरा बनाया चौथा पाँचवा छठा सात आसमान बन गए फिर अल्लाह ने ज़मीन को फैला बनने में ज़मीन पहले है और फैलने में बाद में जो यहाँ कहा जाता है ना पहले ज़मीन पैदा की तो ज़मीन का वो हिस्सा जो बैतुल्लाह शरीफ वाला है सबसे पहले वो पैदा हुआ है और जहाँ आसमान को बनाने का जिक्र आता है तो सबसे पहले पूरा आसमान तैयार किया गया तो पूरा तैयार होने में आसमान पहले है लेकिन पैदा होने में ज़मीन पहले उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है तदबीक है समझ आ गई अल्लाह ने पहले ये की फिर ज़मीन को मिलाया फिर ज़मीन ने हिलना शुरू कर दिया क्योंकि पानी था अल्लाह ने इसको कीलें मारी बड़ी बड़ी सी जिबाल उतादा उससे फिर अल्लाह ने इसको बैलेंस बराबर किया इसके अंदर एक फरमाया वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का हर कुछ चीज़ पैदा की है अब देखो सब्जियाँ हम खाते हैं फल हम खाते हैं ज़मीन में हर चीज़ जो हमारे निकलती है पाक साफ हम लोग खा रहे हैं बाद इंसान है वो सांप खा रहे हैं चाइना वाले वो मेंढक खा रहे हैं चूहे खाते हैं वो खा जाते हैं हालांकि हमें हुक्म ये है कि दिया है कि आप क्या करो या नामनो कुलू मिन तय्यिबात ऐ ईमान वालो पकीज़ा चीज़ें खाओ तुम सबको बनाया तुम्हारे लिए लेकिन खाना तुमने पकीज़ा है वअमलु सालिहा और फिर नेक अमल करो जो इंसान पकीज़ा खुराक खाता है उसको नेक अमल की तौफीक होती है ये बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ते इनकी खुराक ठीक नहीं है ये लेस खाते हैं अक्सर यहूदियों के हैं फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि लेस साहब माशाल्लाह कैसे बनते हैं और एक दफ़ा आप देख लें ज़िंदगी भर आप न खाएं मेरे अपने एक दोस्त थे उनकी अपनी फैक्ट्री थी उन्हें खुद बताया वो प्याज करते थे कहते मैंने तौबा कर ली वो कहते थे कि अब जो पापड़ निकलते हैं लेस तो उसमें बहुत बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं छोटी कढ़ाई नहीं होती क्योंकि होलसेल का काम होता है अब उसके अंदर अगर आप सोचो 100 कनस्तर उन्होंने ऑयल का डाला है मिसाल देता हूँ बड़े बड़े कड़ाहों में 50 अगर डाले हैं तो जो ही पापड़ निकाल दिए तो गिरा देते हैं स्टेज को वो कई महीने चलता है और इतने बड़े कढ़ाई पर ढकना भी नहीं होता उसमें दाल बैग भी जाते हैं उसमें छिपकलियाँ भी गिरती हैं
अक्सर कीड़े मकोड़े उसमें पड़े होते हैं। वो खुद बताते थे यार आप इतना नुकसान, इतने 50 टीन डाले हुए हैं। वो जब ये पापड़ ये लेस होते हैं पूरी बोरी उसमें डालते हैं, तैयार हो जाते हैं, उठा के आगे रखते हैं, आगे पैकिंग हो रही होती है। कहने लगी अब मुझे खुद ज़मीर मलामत करता है कि मैंने बहुत गलत की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मेरे आप कुछ खुराक खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जिसके बाद नमाज की तौफीक नहीं होती तो समझ जाओ कि वो चीज़ ठीक नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं उसमें पिग का ज़ैका डाला जाता है, खंजीर का उसके अंदर लुआब डाला जाता है, अनकोट उसमें डालिए, हराम है। अब उसके खाने के ये होगा कि आपके अंदर हराम खुराक चली जाएगी, आपसे गुनाह ही होगा, नेकी आपसे नहीं होगी। जो इंसान हराम चीज़ खाता है, मशकूक चीज़ खाता है, उसे हमारे सालिया की तौफीक नहीं मिलती। क्यों? कुरान का असूल है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ ईमान वालों पाकीज़ा चीज़ें खाओ तो नेक अमाल करो। पाकीज़ा चीज़ खाएंगे तो नेक अमाल की तौफीक होगी। और एक अल्लाह वालों के बारे में आता है, गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द के घर में गए। सुनो गौर से, आपने एक शागिर्द के घर में गए, कि जो लोग दरी में गौर से देख रहे हैं उनको चाहिए उस्ताद जी को गौर से देखें। तो वो अपने शागिर्द के घर में गए तो उन्होंने शागिर्दों ने अपनी बेटी से कहा कि मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं तो ज़रा ख्याल रखना। तो खाना छाना पेश किया, खाना खाया उन्होंने, उसके बाद ईशा किया, वुज़ू किया, ईशा की नमाज़ पढ़ी। उनके शागिर्द ने अपनी बेटी से कहा कि उस्ताद जी के लिए पानी रख दो, तहज्जुद में उठेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। अब उसने देखा बच्ची ने कि वो बिस्तर पे लेट गए हैं, नवाफिल पढ़ने के बाद, दुआ के बाद सुबह की अजान हो गई। सुबह की लोटा बार रखा हुआ पानी का भरा हुआ। बेटी बड़ी हैरान हुई कि मेरे अब्बू अपने उस्ताद की बड़ी तारीफ़ करते हैं और ये अजीब अल्लाह के वली हैं, फजर की नमाज ही कज़ा कर दी, उठी नहीं, क्योंकि लोटा दरवाजे के बाहर रखा हुआ है। और शागिर्द ने उस्ताद जी से पूछा कि उस्ताद जी मेरी बेटी शिकायत कर रही है कि आपके उस्ताद जी ने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी, तहज्जुद तो कहाँ गई। फरमाया मुझे बताओ कि रात का खाना किसने बनाया था। फरमाया जी कि मेरी बेटी ने बनाया। आपने फरमाया उस खाने में इतना नूर था, इतना सुरूर था, उस खाने की बरकत से सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं कुरान करीम की एक एक आयत से कई मसाइल अक्स करता रहा, तो मैं सारी रात बिस्तर में लेटा रहा, लेकिन मैं कुरान की आयतों में गौर कर करके मसाइल अक्स करता रहा और फिक्र बनाता रहा। मैं तो रात को सोया ही नहीं। उस ईशा के वुज़ू से मैंने तहज्जुद भी पढ़ी और फजर की नमाज़ भी पढ़ी। सुभान अल्लाह। अब जो लोग, आप बच्चे अभी आपके अंदाज़ा नहीं है, जो लोग घर का खाना खाते हैं, नमाजी ख़वातीन घर का बना के देती हैं, अल्लाह उन्हें कश्फ देते हैं। वो कब्र के पास खड़े होते हैं, नज़र आ रहा होता है कब्र में मुर्दे के साथ क्या हो। उनके सामने कोई मरीज़, कोई आम बंदा लाया जाता है, उसके चेहरे को देखकर बता देते हैं कि इसने ज़िना की है, इसने झूठ बोला है, इसने चोरी की है। उसके चेहरे से कोई कफ़ियत अल्लाह उनको नूर दे देते हैं। लेकिन जो बंदा होता है बेनमाजी और के हाथ धोए नहीं धोए, वुज़ू किया नहीं किया, उसी गंद मन को खा लिया, तो वो तो दूर की बात है तहज्जुद की, उसको नमाज की तौफीक नहीं होती। ऐसा गलबा उसके अंदर आता है कि वो लम्बे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरे बेटो, आप बच्चे उस टाइम आप गौर करें, अपनी खुराक पे गौर करें। फल आप खाते नहीं, फ्रूट आप खाते नहीं, लेस खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, ये चीज़ें खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, इससे अपने आप को बचाएँ। बेकरी के प्रोडक्ट गौर करते हैं, कभी दिल करे बेकरी में जाकर देखते हैं, उसको घूमते कहते हैं केक को, रस बनता है कैसे। जो भी अल्लाह वाले नेक लोग होते हैं, इन चीज़ों को बहुत एहतियात करते हैं। तो इसलिए आप इन मैं नहीं कहता हूँ न खाओ, जी भर के खाओ। लोग लाहौर में फला चीज़ का गोश्त भी खाते रहे हैं बड़ा अरसा, आपको पता है, जिसमें लोग गोश्त डालते हैं। जो दिल करते खाओ तो नहीं रोकते, लेकिन अहले ईमान को पकीज़ा चीज़ खानी चाहिए। पकीज़ा चीज़ खाएंगे तो नेक अमाल की तौफीक होगी। अल्लाह ने यहाँ ये कहा है, सब कुछ हमने तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुम्हें अपने लिए पैदा की है। हम अपनी खुराक भी साफ रखें, फिर हर खाने से पहले हाथ भी धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, ताकि या बास या नूर पढ़ के खाएं कि वो खाना आपका नूर बने और अल्लाह ताला आपको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे 3 रुकू मुकम्मल हो गए। कल हमने 3 रुकू को रिवाइज़ करना है, याद करना है, हर एक ने याद करना है, हर एक ने सुनाना है। जुमरात का दिल भी है, इंशाअल्लाह 3 रुकू पक्के होंगे तो फिर 4था रुकू शुरू होगा। अल्लाह में